پھر آخر کیا چیز کاٹتی ہے انسان کو کہ جب فضیلت علی کے اندر روایتیں آئی اور ان کے اوپر حادثات کر دو. میں نہیں لڑنا چاہتا تھا لیکن آپ نے ہمیں مرغا بنا. نہیں ایسا نہیں. پھر میں آپ کو پھر میں ہٹا دیتا ہوں. بالکل موضوع بدلتے ہیں. ایمان پہ رہ سکتا ہے آپ کے مخالف آنے والا, ایمان پہ رہ سکتا ہے آپ سے جنگ کرنے والا, بغاوت کرنے والا, نہیں رہ سکتا. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے معیار بتائے ہیں انہی معیاروں پر ہی فیصلہ ہو. میں کیا سمجھتا ہوں, میری محبت کا معیار کیا ہے, آپ کے دل کی محبت, یہ کوئی پیمانہ نہیں. جیسے انہوں نے ایک پہلے حدیث بیان کی, آپ کی پوری محفل میں یہ حدیث تو گونج رہی ہے اور بیان ہو رہی ہے کہ علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے اور علی سے محبت کرنے والا مومن ہے, اور یہ پیمانہ ہے. آمنا وصدقنا. لیکن جو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, اب وہ تقابل ہوگا. آپ نے یہ فرمایا کہ اے علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے, 2 گروہ جہنم میں جائیں گے. وجہ علی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ علی پوچھے گا, علی سے اللہ پوچھے گا اس جنت میں بھیجوں کہ نہیں بھیجوں. یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں, جنت میں نہیں جہنم میں جائیں. فرمایا ایک تیری دشمنی میں, یعنی وہی جو نفرت, وہی بغاوت, ایک تیری دشمنی میں, اور ایک تیری محبت میں غلو کی وجہ سے. بات ہو گئی. اب عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دنیا میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, کوئی بھی مسلمان کہلانے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے. لیکن عیسائی کہتے ہیں مسلمان مانتے ہی نہیں. ہم مانتے, مسلمان نہیں مانتے. کیوں؟ جیسا وہ مانتے ہیں ہم ویسا نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا کہو گے تو ہاں عیسیٰ کو مانا. وہ یہی کہیں گے کہ آپ عیسیٰ, قرآن کہتے ہیں قالت النصارى المسیح ابن اللہ, قالت الیہود عزیر ابن اللہ. اب اس طرح ہم مانیں گے تو وہ یہ مانیں گے کہ اس نے مانا ہے. ہم تو وہ مانیں گے جو رسول اللہ نے کہا ہے. ہاں یہ ہے اصل معیار. اصل معیار یہ محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جس طرح کی محبت ہم, جیسے محبت کی راہ میں بہتے ہوئے ایک صحابی کے بارے میں بھی خطیبانہ وہ جملے کس کے کہہ دیے گئے کہ حضرت عمار بن یاسر علی کے در کے منگتے تھے, کہ کسی صحابی کے لیے یہ جملہ کسی طرح مناسب. خاص ہم تو پھر بھی گناہگار ہیں, جو ہے سب کچھ, لیکن صحابی کے عقیدے کے بارے میں بھی اس طرح کے جملے کہنا جس طرح میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے, یہ نہیں. کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کے در کا منگتا نہیں تھا. سارے صحابی اللہ کے در کے منگتے. صحابی ہوتا ہی ہوئی, اللہ کے رسول نے ان کو ہر در سے چھڑا کر رب کے در پر بنایا, ہر جائی سے ہٹا کر یکجائی بنایا. اور آج ہم پھر وہی کہیں کہ وہ اس کے در کے منگتے تھے. عجیب باتیں کہتے ہیں. صحابہ اللہ کے در کے منگتے تھے. انہی صحابہ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها, من اراد العلم فلیات الباب. جو علم چاہتے وہ علی کے دروازے, علی کے پاس جائے, بوئے کے اوپر جائے, دروازے پہ جائے, علی کے پاس جائے. بھائی خود رسول خدا علی کے پاس بھیج رہے ہیں اور صحابہ علی کے پاس آ رہے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں, ان میں سے 100 محدثین کے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, 130 صحابہ جو ہے نا کل مفتی ہیں, اور ان مفتیوں میں سے سارے مانتے ہیں کہ مجتہد صحابہ اکرام جو ہے نا 10 یا 11 ہیں, اور ان میں سے بھی بڑے بڑے محدثین اکرام کے اقوال موجود ہیں کہ ان میں سے بھی جو جلیل القدر صحابہ علم کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ, اور ایک اور صحابہ معاذ بن جبل, ان چند صحابہ کے پاس آتے ہیں. یہ بات چھڑی کہ اگر ان کو مسئلہ درپیش ہو یہ کہاں جاتے ہیں, انہوں نے فرمایا وہ علی کے پاس. خود حضرت خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک نہیں دو نہیں 20 مختلف الفاظ سے آپ کی یہ لفظ موجود ہیں, کیا فرماتے ہیں یا اللہ جس جگہ جس جہان میں علی نہ ہو حسن کا بابا مجھے وہاں زندہ نہ رکھا. تو پھر وہ جو کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر, تو یہ سب چیز کیا ہے. اور پھر جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سوال, تو آپ فوراً پاس کرتے ہیں, کہتے ہیں علی کے پاس جاؤ, اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا فکر ہے جب ہمارے اندر علی جیسی ہستی موجود ہے. تو یہ اس سینس میں کہا جاتا ہے جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے. رہ گیا معاملہ قاری صاحب کا, بغض کے ساتھ سینگ نہیں ہوتے ہیں. بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ممدوح کی عظمت اور شان میں سے کیڑے نکالیں, اور یہ بڑا پرانا مولا کائنات کے زمانے سے یہ چیز چل رہی ہے. بھائی یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ مولا کائنات کے نام پر نام رکھنے والوں کے سر اڑائے جاتے تھے. کیا یہ اسماء الرجال کی مستند اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ ممبروں پر بیٹھ کر مولا کائنات پر سب و شتم ہوتا تھا. لہٰذا میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں اکثر کہا نہیں ہوتا تھا لا الہ, میں والا دیتا ہوں الاستحاء, میں والا دیتا ہوں. بھائی باقی تم مانو صحابہ کے حوالے سے مانو تو ادھر تمہیں ہاں درد ہوا ہے, درد ہوا ہے. علی کے بغضیوں پہ سٹ لگی ہے, درد ہوا ہے. اسی کو کہتے ہیں بغض علی, اسی کو کہتے ہیں بغض اہل بیت. میں کہہ رہا ہوں کہ ان ظالموں نے کیا مولا کائنات کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا خوارج نے؟
अकबर। गाली देना छोड़, जो अली को काफिर कह सकते हैं, जो अली के ऊपर शिर्क का फतवा लगा सकते हैं, क्या उनसे वही दे के वो गालियां दे? और मैंने तो नाम नहीं लिया कि किसने दी है, खुद बोले कि किसने दी है। असल बात यह है कि हमें बर्दाश्त करना चाहिए। या उठाओ इन सारी किताबों को उठाकर दरिया के अंदर बहाओ, अल इस्तियाब को उठाओ, इब्ने हजर को उठाकर फेंको, ये सारे वो हैं कि जिन पर तुम्हारा अस्माउर रिजाल खड़ा है, सारे का सारा उन्होंने लिखा है और ये चीज मौजूद है। आपका नंबर आएगा, बोलिएगा बेशक, मौजूद है इसमें। और मौला कायनात मौला अली पाक की जो हवाले से मैं बात कर रहा हूं, तो बात यह है कि ये एक पुराना नवासिब का तरीका था कि वो हर वो हदीस जो शान अली के अंदर आई उसके साथ कोई ना कोई अल्फाज, चंद एक अल्फाज बढ़ाते थे। मुहद्दिसीन उन अल्फाज के हवाले से कहते थे ये हदीस साबित नहीं है, और उसको खवारिज उठाकर या नवासिब उठाकर लगा लेते हैं, देखें फलां मुहद्दिस ने कह दिया नहीं है। असल इस हदीस के साथ भी प्रैक्टिस की गई है। इस हदीस को भी मजरू करने के लिए इसके आगे पीछे अल्फाज बनाए गए, अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर ने सासवा वगैरह। ये इस्माइल उस्तराबादी की घड़ी हुई रिवायत है, इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर मौजू का हुक्म लगा है। ये जो रिवायत हम पढ़ रहे हैं, अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुआ, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह तआला अल मुस्तदरक के अंदर ये रिवायत लेकर आए, इमाम तिरमिज़ी ये रिवायत लेकर आए, और लिसानुल मीज़ान के अंदर इसी तरह की जो लोगों के एतराज थे, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, जिसके सबकी जुबान पर अस्कलानी होता है, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ये रिवायत देखकर उन लोगों का तहक्कुब करते हुए जिन्होंने इस रिवायत के लिए कहा ला अस्ल लहू, आप फरमाते हैं ये जुर्रत है कि इस हदीस के लिए कहा जाए ला अस्ल लहू बल लहू अस्लुन साबितुन, इस हदीस की असल है, साबित है। और फिर आगे बढ़िए, काजी शौकानी जो गैर मुकल्लिदीन के बुजुर्ग हैं, वो फायदुल मजमुआ के अंदर लिखा हुआ है, वो फरमाते हैं हादल हदीसु हसनुल लिगैरी, ये हदीस हसन लिगैरी है, कई तुर्क से ये आई हुई है। इमाम ज़करिया अंसारी, इमाम बदरुद्दीन ज़रकशी, इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं ये हदीस सही है। इसके अलावा 25 से ज्यादा मुहद्दिसीन कि जिनका अस्माउर रिजाल और हदीस के फन के अंदर एक मकाम है, वो कहते हैं कि ये हदीस सही है, किसी ने कहा ये हसन है। अब मैं आगे आखिरी बात कर रहा हूं, अगर हदीस ज़ईफ भी है, क्या अहले हदीस और अहले सुन्नत के मुत्तफिक उसूल हदीस के अंदर क्या ये बात है कि नहीं है, मौजूद है कि नहीं है? कि हमारे यहाँ फजाइल के चैप्टर और फजाइल के उन्वान में हदीस ज़ईफ भी काबिल कबूल है, और अगर इस पे कहेंगे तो मैं बीसियों वाले दे दूंगा कि फजाइल के चैप्टर के अंदर हदीस ज़ईफ भी मौजूद है। फिर आखिर क्या चीज काटती है इंसान को कि जब फजीलत अली के अंदर रिवायतें आई और उनके ऊपर हाथ कर दो। मैं नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन आपने हमें मुर्गा बनाया। नहीं ऐसा नहीं, फिर मैं आपको लड़वा दूं, फिर हटा देते हैं, बिल्कुल मौजू बदलते हैं। जिस तरह इन्होंने फरमाया कि बुग़्ज़ के कोई सींग नहीं होती, गुलोब के भी सींग नहीं होती, गुलोब इसी तरह जाहिर होता है। जो हदीस सही मुहद्दिसीन कह रहे हैं वो गुलोब है। चुप रहे यार। अच्छा, ये क्या बात है? डॉक्टर मैं बात को खत्म करता हूं। आप अपनी बात ये बताइए कि अगर ये गलत बात दीन है, बिल्कुल गलत बात, सीन है, ये हदीस में आती है, आधा घंटा बात करके मेरे 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं होगा। आपके जी न्यूटन, ठीक है, आप अपनी बात बारी भी कीजिएगा, आपकी बात करें। जिस तरह पानी पी जिस तरह बुग़्ज़ के सींग नहीं होते, गुलोब के भी सींग नहीं होते, ये जुमला बिल्कुल। और गुलोब इसी तरह जाहिर होता है, जिस तरह आपको हमें बुग़्ज़ नजर आता है, हमें भी गुलोब इसी तरह आप में नजर आता है। सिर्फ मुझे नहीं, आपकी पूरी जमात को नजर आता है। कई स्टेजों पे मैंने क्लिप्स देखे हैं, और वो उसका नतीजा यही बुग़्ज़ होता है, यही गुलोब होता है। और दूसरी बात यह है, एक पूरी इमारत जो आधे घंटे की तकरीर की गई है, एक ज़ईफ़ रिवायत पर खड़ी की गई, पूरी की पूरी इमारत उस पर खड़ी की गई। अब उस कच्ची बुनियाद पर एक पक्की इमारत आप खड़ी करना चाहते हैं, वो 1 मिनट नहीं टिक सकती, 1 मिनट भी नहीं टिक सकती। इमाम हाकिम ने जी उसको सही कहा। इमाम इब्ने हज़म फरमाते हैं ला तातबिरु तहसीन तिर्मिज़ी व तसहीह अल हाकिम, जिस रिवायत को इमाम हाकिम सही कह दे और इमाम तिर्मिज़ी हसन कह दे, उसकी कोई हैसियत ही नहीं। तो ये मुहद्दिसीन के पैमाने हैं। बाज तहसीन करने में तसावुल बरतता है, बाज तसीह करने में तसावुल बरतता है। और इमाम बुखारी जैसे वो सख्त है, उनका मेयार सख्त है, इमाम मुस्लिम का मेयार सख्त है, तो उन सख्त मेयार पे फिर कम रिवायात जो आती है वो उस पर आती है। तो हम फैसला ही उस बुनियाद पे कर रहे हैं जो रिवायत मुहद्दिसीन की नजर में ज़ईफ़ है, सही नहीं है, सही नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भी तो फजीलत है ना, फजीलत है, तो मैं कह रहा हूँ ज़ईफ़ है। फज़ाइल के बाब में ज़ईफ़ हदीस ली जाती है। फज़ाइल के वो इस तरह होता है जैसे जी इस किताब को पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, इस किताब को पढ़ो, लेकिन उसकी असल जो है, यानी वो फजीलत साबित ना हो, लेकिन उसकी असल सही हदीस से साबित हो। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज की असल सही हदीस से साबित कि नमाज पढ़नी हम पे फर्ज। अब किसी रिवायत के अंदर, और वो रिवायत ज़ईफ़ हो, किसी रिवायत के अंदर ये हो कि जो फजर की सुन्नतें पढ़ेगा उसको ये सवाब मिलेगा, और वो रिवायत हो ज़ईफ़। अब हम कहेंगे फजर की सुन्नतें तो साबित है, लेकिन सवाब अगरचे साबित नहीं है, लेकिन इतना ना होगा कुछ तो होगा।
उस रिवायत को मुहद्दिसीन मान लेते। ये नहीं कि बेस अकीदे की बेस ही उस ज़ईफ रिवायत पर रखी है। अकीदे की बेस फजाइल ये अकीदा है, उस बुनियाद पर हमें बागी कहा, उस बुनियाद पर हमें वो कहा गया कि ये बुग़्ज़ रखने वाले आकर आपने सबसे पहले मुझसे ये सवाल किया, बुग़्ज़ रखने वालों की गुफ्तगू ये होती है? नहीं होती कारी साहब। लेकिन गुलाम करने वालों की गुफ्तगू ये नहीं, वो भी नहीं। अगर इजाजत हो तो मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपकी तरफ एक भाई आप लोग ना, मैं हवाला भी नहीं दूंगा, मैं शॉर्ट सा रिबेटल दूंगा। ले लो उसके बाद। बात ये है कि कारी साहब ने ये कहा है कि ये गुलूफ, इसमें इनको गुलूफ नजर आए। बात यह है कि मैंने हवाले दिए हैं इमाम हाकिम, इमाम तिरमिज़ी जैसे मुहद्दिसीन के, फिर सेहत मैंने बयान की है और इस रिवायत को लासला लहू कहने वालों का ताक़ुब किया है इमाम इब्न हजर अस्कलानी जैसे बंदे। इमाम सयूती ने हदीस की तस्हीह की है, यहया बिन मईन इसको सही कह रहे हैं, ये इतने बड़े मुहद्दिसीन हैं। और इसी तरह से इसको इमाम अब्दुल रऊफ मनावी ने इसको सही करार दिया है और मैंने इनके बुजुर्गों का हवाला दिया, वो इसको हसन ले गए कह रहे हैं। और ये जब इतने मुहद्दिसीन इस हदीस को बतौर हदीस रसूल ले रहे हैं तो क्या वो गुलूफ कर रहे थे? जिस गुलूफ का इन्होंने पहले जहन्नमी करार दिया था, ये एक बहुत बड़ी जुर्रत है। दूसरी बात ये, इन्होंने एक अगली बात की कि इसकी असल कोई नहीं होनी चाहिए। हालांकि मुहद्दिसीन ये माशाल्लाह अगर ये पढ़ें तो तौफीक हो जाए, अल्लाह करे अली मौला की शान में ये इस चीज पे, रवायत पे दोबारा तहकीक करें तो इनको इमाम इब्न हजर ही ये कहते नजर आएंगे कि इस हदीस की असल है। और वो हदीस कौन सी है? दूसरी हदीस अना दारुल हिकमत वाली बाबुआ, उस पर किसी ने एतराज नहीं किया। कहते हैं कि ये इसके माने में ये रिवायत मौजूद है, लिहाजा इस रिवायत के कबूल करने में कोई हरज नहीं है। तो दूसरी तरफ जब फजीलत के बाब में हदीस ज़ईफ भी कबूल है तो एक रिवायत अगर कोई पढ़ देता है अपने, जिसका ये तहकीक है कि इतने मुहद्दिसीन इस हदीस को सही कह रहे हैं, उस पर सीख पा होने का क्या मकसद? नहीं मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ भाई, सीख पा होना यही है ना कि आप बजाय फजाइल को छोड़कर रिवायत के पीछे। ठीक है, मैं मुफ्ती हमारे यहाँ ये भी एक वो बुग़्ज़ की एक कैफियत होती है कि मुहर्रम शरीफ के दिन होंगे, जिक्र आले बैत के नाम का लोगों को मजमा इकट्ठा किया जाएगा, 9 घंटा दाएं बाएं मशरिक मगरिब, आखिरी 10 मिनट, अच्छा वक्त खत्म हो गया यार, जिंदा सोबत बाकी, वक्त होता तो मैं जिक्र हुसैन में, जिक्र आले बैत में, भाई तू जो पहले पौना घंटा इधर उधर लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? तुझे बुलाया ही शान आले बैत के लिए, तो हमें ये चाहिए कि अपने मिजाजों को ठीक करें, आले बैत अतहार के हवाले से अपने आप को दुरुस्त करें, क्योंकि बुग़्ज़ आले बैत ये मुनाफ़िक़त है। और नबी पाक ने फरमाया जो मेरी आले बैत का बुग़्ज़ी होगा क़यामत वाले दिन यहूदियों के साथ होगा। और एक और रिवायत के अंदर हुज़ूर ने फरमाया कि मन सफ़ेना बैन रुकने वाल मकाम, जिस आदमी ने सारी जिंदगी काबा शरीफ के सामने खड़े होकर फकाम फसाम फसल्ला, दिन सारा रोजा रखा, रात को नमाजें पढ़ी, सुम्मा लकी अल्लाह व मुबग़िज़ुन आले बैत नबी, वो अल्लाह की बारगाह में साल में पहुंचा कि वो नबी की आले बैत से बुग़्ज़ रखता था, अल्लाह उसको उठाकर जहन्नम में डाला। वो शोहर फातिमा है, वो मौला मोमिनीन है, वो मौला मोमिनीन है, मन कुन तो मौला फलीन मौला, वो उस मंजिलत में कि जो मूसा और हारून की मंजिलत है। ये वो शान है कि हुज़ूर ने फरमाया कि सिवाय नबुव्वत के, हुज़ूर ने फरमाया मैंने जो कुछ अपने लिए मांगा, ए अली वो सब कुछ मैंने तेरे लिए मांगा, सिवाय इसके कि मालिक ने मुझे कहा महबूब बाकी सब कुछ मांगना और नबुव्वत ना मांगना, नबुव्वत तुझ पर खतरा। मैं तो इस बहस में हूं कि मौला कायनात के अंदर शान में अंदर हजारों रिवायतें हैं, उसमें जरा हम नाप तोल करेंगे, गौर करें तो मैं समझता हूं इस रिवायत का मुकाबला नहीं है कि जो कुछ मैंने अपने लिए मांगा, अली वो मैंने सब कुछ तेरे लिए मांगा, सिवाय इसके कि मुझे मना कर दिया गया कि ए नबी महबूब नबुव्वत नहीं मांगना क्योंकि तू आखिरी नबी है। तो इसलिए मैं अब ये कह रहे थे, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सोना सबसे महंगा है, सबसे महंगा ना, ये लोहे से, मेरा आपसे एक सवाल है, मकनातीस लोहे से चिपकता है, सोने से क्यों नहीं? इसी तरह मुनाफिक जिक्र अली से पहचाना जाता है। और खुद रसूल खुदा ने फरमाया ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक, तो ये पैमाना मुकर्रर किया रसूल खुदा की जात ने। और मोहब्बत का ये तकाजा होता है कि यार के जिक्र से सीना खुलता है, तंग नहीं होता, चेहरे के ऊपर शिकने नहीं पड़ती हैं, मोहब्बतों का एक